رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہیلو، ہاں بولو۔ جی مولوی افروز عالم دیوبندی صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی بول رہا ہوں میں۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں؟ جی میں یو پی۔ کون سی جگہ سے؟ مئو۔ اچھا مئو۔ میں ایک دن گروپ میں دیکھ رہا تھا، آپ محرم کی وہ ویڈیو ڈال رہے تھے گروپ کے اندر۔ ہاں 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 بولے بھائی۔ ہاں تو اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے محترم اور ہم سب کے احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ بلکہ منع کیا ہے تعزیہ اٹھانے سے۔ جی پھر تو آپ وہ کیوں ڈال رہے تھے؟ جی آپ وہ کیوں ڈال رہے تھے؟ ارے اسی لیے ڈال رہا تھا کہ جلد اس کو محنت کر کے ختم کرو۔ اچھا یہ تو آپ مانتے ہیں کہ حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حرام کہا ہے اسے تعزیہ داری کو؟ بالکل بالکل منع کیا ہے ایک دم سے۔ ہاں منع کیا ہے۔ تو کیا وہ بریلوی تھے جنہوں نے تعزیہ داری جو دکھا رہے ہیں آپ یہ؟ ہاں وہ بریلوی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ارے نجمو کون نہیں جانتا ان کو، نجمو بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں تعزیہ کوئی نہیں اٹھاتا۔ میں کہہ رہے بھیا ہمارے گھوسی میں سب سے بڑا مدرسہ ہے شمس العلوم، ہم لوگ وہاں پر رہتے ہیں، ہماری سسرال بھی وہیں پر ہے، پورا جم کر اٹھاتے ہیں لوگ۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے، بات سنیے، بات یہ ہے کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت احناف ہیں۔ ہم کو اب ہم ناف میں سے ہم دیوبندی اور بریلوی ہو گئے۔ بات سنیے گا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو کوئی برا کرے، ہمارے عمل سے ان کو لوگ برا کہتے ہیں۔ مزار پر چادر چڑھانا ایک ہے صرف۔ اچھا آپ حالت کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں حالت، کیا مانتے ہیں حالت کو آپ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ کیا مانتے ہیں؟ دیکھیے ہم اپنے بزرگوں کو کسی کو بھی ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں۔ صاحب سن لیجیے، ہم تو یزید کو بھی برا کریں تو پہلے 3 مرتبہ سوچتے ہیں کہ وہ صحابی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ نہیں کرنا ہے، ہم کو اتنا کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہ نہیں کہا ہے تعزیہ اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہیں، وہ غلط نہیں کہے، انہوں نے منع کیا ہے تو ماننے میں فائدہ ہے، ورنہ شیعہ کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ صاحب اچھا سنیے مولانا صاحب، یہ جو لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں تو کیا یہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، جو آدمی شراب پیتے ہیں تو کیا اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں؟ اس کو نہیں، صحیح شراب پیتا ہے گناہگار ہے، وہ گناہگار بس وہی گناہگار ہے بھائی، وہی بات ہے۔ بڑے بھائی ایک بات، کیا نام ہے آپ کا بڑے بھائی؟ میرا نام محمد طاہر رضا قادری ہے۔ طاہر بھائی اصل میں بات یہ ہے نا، سنیں میرے محترم، آپ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں، میرا منشا یہ ہے نا کہ ایک غیر مقلد جو اہل حدیث اپنے نام نہاد ہیں، یہ فرقہ بہت گندا فرقہ ہے۔ میں ان کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی اسٹیج پر میں چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو۔ میرا آپ کیا مانتے ہیں انہیں؟ غیر مقلدوں کو کیا مانتے ہیں آپ؟ میں ان کو شیعہ سے بدتر مانتا ہوں۔ مسلمان مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں؟ نہیں، میں ان کے پیچھے نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ ویسے آپ دیوبندی ہیں؟ ہاں میں دیوبندی ہوں۔ دیوبندی ہے۔ اچھا ابن عبد الوہاب نجدی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ سعودیہ کے ہے، وہ تو مانتے کیا انہیں؟ میں بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ میری بات سنا نا، وہ بادشاہ کے لیے لڑے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ سعود کو بادشاہ بنوایا تھا، فوج کر کے امریکہ سے مل کر کے۔ میں ان لوگوں کو کسی کو، دیکھو میری بات سنو نا، میں کسی مسلمان کو برا کہنے کے بجائے میں اہل قرآن اور اہل حدیث، یہ 2 فرقہ انگریز کے دور میں وجود میں آیا ہے، اور یہ فرقہ اہل قرآن جب وجود میں آیا تو اس نے حدیث کا انکار کیا اور منکرین حدیث بن گیا، اور یہ اہل حدیث فرقہ جب وجود میں آیا تو یہ فقہ کا انکار ہوا اور منکرین فقہ ہو گیا۔ یہ دونوں فرقہ اسلام کی جڑ کو برباد کر رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، قبلہ کی طرف پیر پھیلانے کو کہہ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھیے صاحب، مولانا افروز صاحب، جی حضرت، آپ اور اہل حدیث جو کہلاتے ہیں، تم دونوں ایک ہو، میں ثابت کروں گا۔ بھیا ایک ہو یا 2 ہو، مجھے اس چکر میں نہیں پڑنا ہے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ میری بات سنو نا، میری بات سنو۔ آپ سنو، نجمو بھائی کے گروپ میں تھا بحث و مباحثہ میں، میں نے اس میں یہ کہا کہ ہے کوئی
अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद नाम नहाद वो जो है कोई है जो अपने आप को जो कहता है कि फिक़ह की जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस से दीन पर चला जाएगा, तो अपनी शुरू की तकबीर तहरीमा कुरान और हदीस से साबित कर दे कि इमाम तो बुलंद आवाज से तकबीर कहेगा और नहीं साबित कर पाएगा, तो मर जाएगा नहीं। अगर नहीं साबित कर सकते तो फिक़ह को गाली देना बंद कर दो और मैदान में अगर तो मैदान में आओ। अब नजमू भाई तुम क़यामत तक नहीं कर सकता, लेकिन मौलाना अफरोज साहब कादरी साहब 1 मिनट मेरे भाई, एक खाली बच्चा पूरी करने में सुनूंगा आप। उसके बाद नजमू भाई कहने लगे कि तुम देवबंदी, जो आपने सवाल उठाया है वही, तुम वहाबी देवबंदी एक हो, अहले हदीस देवबंदी एक हो। मैं वहीं से मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि आप लोग जो असल मुद्दा है उससे हट रहे हो। हम लोग ऊपर से एक है, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ, यहाँ पर देवबंदी बरेली में कुछ आपस में इख्तिलाफ है, इसको हम लोग आपस में हल करें। इन जो गैर मुक़ल्लिद काफिर हैं इनके सामने हम अपनी बात न लाएं, मगर नजर भाई नहीं माने। मुझे थोड़ा बोलने देंगे आप फिर मेरी बात, फिर आप वही बात करेंगे तो फिर मुझसे आपसे बकवास। अरे अफरोज भाई मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बात महज़ब तरीके से आप कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कहेंगे मेरी बात, अगर आप ये कहेंगे कि देवबंदी और अहले हदीस एक है तो फिर मुझसे आपसे झगड़ा हो जाएगी। आप तो नहीं, मैं कहूंगा नहीं, मैं जबान से नहीं कहूंगा, मैं साबित करूंगा। तो आप मेरी बात सुनिए, आप साबित करिए तो मेरे पर्सनल में उसमें आइए, मेरे पर्सनल में आइए, व्हाट्सएप पर हम भी इधर से लगाएंगे, आप भी लगाइएगा। व्हाट्सएप पर आइए पर्सनल में। तो भाई नहीं व्हाट्सएप पर नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्माइल देहलवी जो है इन्हें क्या मानते हैं आप? हेलो, अरे भाग गए दिखाने नदीम भाई। हेलो नदीम भाई भाग गए, अफरोज आलम साहब भाग गए? हाँ भाग गए। लगाओ, दोबारा लगाओ। हेलो भाई जान। हाँ अफरोज भाई भागो मत यार, भागो मत। मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी सुन लो। मैंने आपकी बहुत देर सुन ली मैंने आपकी। एक मिनट मेरी सुन लो, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट बात तो सुन लो यार। कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, मेरी एक दूसरे ग्रुप में मुनाजरा चल रहा है, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप में आओ, वहाँ पर अपनी बात रखो। मैं भाई व्हाट्सएप में नहीं है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस्माइल देहलवी को आप क्या मानते हैं? मैं साबित करूंगा कि आप और अहले हदीस दोनों एक हो, दोनों एक ही थाली के कट्टे बट्टे हो और दोनों ही काफिर हो, इस्लाम से खारिज हो। मैं साबित करूंगा अभी। आप भाग क्यों रहे हैं फोन काट कर? देखिए सामीन हजरात, ये हाल इन देवबंदियों का। ये है मौलवी अफरोज आलम देवबंदी, जो कि आते हैं ग्रुप के अंदर और भौंकते हैं कि साहब गैर मुक़ल्लिद तो गुलाब, गैर मुक़ल्लिद और तुम हो तो एक ही, तुम्हारे बाप दोनों के एक हैं, तुम दोनों एक ही बाप की औलाद हो। इब्न अब्दुल वहाब नज़दी को तुम भी अपना पेशवा मानते हो, अहले हदीस भी अपना पेशवा मानते हैं। इस्माइल देहलवी को तुम भी अपना पेशवा मानते हो, वो भी अपना पेशवा मानते हैं। अब जैसे तुम काफिर हो ना कह रहे हो अहले हदीसों को मौलवी अफरोज आलम, वैसे इस्माइल देहलवी को तो काफिर कहो, इब्न अब्दुल वहाब नज़दी को भी तो काफिर कहो कि वो काफिर था। ये कौन सी दोगली पॉलिसी है तुम्हारी? मुसलमानों देख लो, ये हाल है इन देवबंदियों का। ये है इनका मतलब इस्लाम। इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ये मरदूद शैतान आवाम को धोखा देते हैं, झूठ बोल के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है मौलाना साहब? अल्लाह करम, अपना तारुफ कराएं आप। मैं मोहम्मद ताहिर रजा कादरी बोल रहा हूँ, यूपी से, मुरादाबाद से। अच्छा, एक दफा और आपसे बात हुई। हाँ आपकी मेरी बात हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं साबित करूंगा कि देवबंदी और वहाबी एक है। हाँ हेलो, आपसे क्या बोले हैं बड़े भाई? मैंने आपसे ये कहा था, आप ये कहते हैं ना कि मैं वहाबी को मुसलमान नहीं मानता, अहले हदीसों को, तो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं साबित करूंगा कि अहले हदीस और देवबंदी दोनों एक है। नहीं भाई सुनिए, आप कहाँ से साबित कर? आप 1300 साल बाद अज़ान उस्मानी बंद कर दिए, 1300 साल बाद आपने तरावी 8 रकात कर दी। नहीं सुनो तो मैं साबित करूंगा। मेरी बात सुनो, जब आप बोलेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा, जब मैं बोलूँ तो आप मेरी सुनो। आप बोले, बात सुनो मेरी। आप बोले 1300 साल बाद आपने मुसाफा एक हाथ से कर दिया, तो हर काम आप 1300 साल बाद कर रहे हो, तो अलैकुम ये सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन पर अमल आपका कहाँ हुआ? मेरे प्यारे आका ने फरमाया मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन को सुन्नत मजबूती से पकड़ लो। तो मेरे नबी ने जो बताया तो सहाबा ने अज़ान उस्मानी दिया, आपने उसको छोड़ दिया, तो फिर आप और हम कैसे एक हो सकते हैं? हम तो एक नहीं है, हम तो, मैं तो बरेलवी हूँ। मैं आपको एक कैसे हो जाएंगे? आप बरेली नहीं? मैं तो बरेलवी हूँ। नहीं, कैसे मैं मान लूं? अरे मेरी आपसे बात हुई है, मैं साबित करूंगा। अभी मैं गुफ्तगू में साबित करूंगा। आप इस्माइल देहलवी सुनिए, अब मुझे तो बोलने नहीं देंगे आप। आपकी मैंने अभी सुनी, मेरी भी सुने आप। होना साबित करें।
बस करूंगा अभी साबित। आपने ग्रुप के अंदर इस्माइल, अरे सुन तो लो यार, अब सुनते तो हो नहीं तुम। तुमने ग्रुप, बरेली अपना साबित करो। मैं साबित कर तो रहा हूँ, अब साबित बोल जब भी तो करूंगा, जब बोलने दोगे मुझे वैसे ही साबित कर दूंगा मैं। अरे यार अब इसको शुरुआत करो वहीं से। हाँ शुरुआत कर तो रहा हूँ, अब सुन तो लो। आप सुनने का तो मादा पैदा करो अपने अंदर। आपने, अरे सुन तो लो, कम से कम सुनने का तो मादा पैदा करो अपने अंदर। सुन तो कर रहे हो, उतने में तो आप शुरू कर देते। अरे तो बोलने से तो शुरू करूंगा यार, तुम बीच में बोल टोक दे रहे हो, सुनते हो नहीं। मेरे भाई आप फिर बोल रहे हो, अरे यार शुरू करो। शुरू कर रहा हूं मैं। आपने ग्रुप के अंदर इस्माइल, फिर बीच में बोलने लगे। आपने ग्रुप के अंदर इस्माइल देहलवी की किताब सिराते मुस्तकीम का, सुनिए अब फिर बोलने लगे। सिराते मुस्तकीम का आप दिफा कर रहे हैं, तो इस्माइल देहलवी को आप मानते क्या हैं? अरे यार मैं ये कर रहा हूँ भाई कि आप बरेलवी हो तो आप साबित करोगे बरेलवी। अरे मैं कर तो रहा हूँ साबित। मैं इस्माइल देहलवी को काफिर मानता हूँ, मैं काफिर मानता हूँ इस्माइल देहलवी को। आप इस्माइल देहलवी का दिफा कर रहे हैं, उस इबारत का दिफा करो अब यहाँ। आप बरेलवी कैसे हो पहले जो सिराते मुस्तकीम की इबारत का आप दिफा कर रहे हैं, अब मुझसे दिफा करो। कैसे दिफा कर रहे हो आप उसका? आप बरेली हो, पहले आपका साबित तो करो कि आप बरेली हो। मैं देवबंदियों के चारों अकाबिरों को काफिर मानता हूँ। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने उन पर कुफर का फतवा लगाया, मैं उन्हें काफिर मानता हूँ। साबित करो, ये बताओ कि हो तो क्या साबित? एक बार बताओ कब बरेलवी की क्या मतलब बरेलवी किसको कहते हैं? पहले उस मौजू पर आओ जो तुम्हारी मेरी बात पहले हो चुकी है। मैंने ये कहा था कि मैं अहले हदीस और देवबंदी एक हैं, दोनों को साबित करूंगा। अरे मेरा अभी साबित हो जाएगा सब यहीं। पहले तुम बरेलवी अपने आप को साबित, ये रास्ता मत ढूंढो डॉक्टर अफरोज साहब, रास्ता ढूंढो भागने का तुम। मेरी बात सुनो, तुम बरेली हो, पहले ये साबित करो ना। मैं और कैसे साबित करूं? अरे मैं देवबंदी को चारों अकाबिरों को काफिर मानता हूँ। मैं हुजूर आला के फाजिल अहमद रजा खान साहब को आप क्या मानते हो? अपना इमाम मानता हूँ, मुजद्दिद मानता हूँ उन्हें। तो आप कबर पर अजान एक मरतबा क्यों देते हो? वो तो 7 मरतबा कहे अजान देने के लिए। कहाँ लिखा हुआ? अगर दिखा दूं तो आप तोबा कर लो ना बरेली। पहले ये बताओ कि इस्माइल देहलवी की सिराते मुस्तकीम की इबारत का जो आप दिफा कर रहे हो, उसका दिफा करके दिखाओ मुझे यहाँ। तुम मर जाओगे लेकिन दिफा नहीं कर पाओगे। मैं ये साबित करूंगा कि अहले हदीस और तुम दोनों भाई भाई हो। यार गजब आदमी, तुम बरेलवी अपने आप को साबित कर तो रहा हूँ मैं। अरे और कैसे साबित करूं? अहमद रजा खान साहब को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। उनको मानते हो? पहले मैं ये साबित करूंगा कि अहले हदीस और तुम दोनों एक हो। तुम बरेलवी हो ना, तो तुम आला हजरत की बात को मानते नहीं हो। वो कह रहे ये अजान तो तुम एक मरतबा दे रहे हो। कहाँ लिखा हुआ? अगर मैं साबित कर दूंगा तो तुम तोबा कर लोगे ना बरेलवी। पढ़ो कहाँ लिखा हुआ, कौन सी किताब मेरे पास भेजो। अरे यार अगर मैं साबित कर दूंगा तो क्या साबित करो, अपने हक्कानी दिखाओ मुझे तुम, और मैं साबित करूंगा देवबंदी और तुम अहले हदीस दोनों एक हो। दोनों ही काफिर हो तुमको साबित कर, तुम दोनों ही काफिर हो। इस्माइल देहलवी को दोनों अपना पेशवा मानते हो, तुम दिफा कर रहे हो इस्माइल देहलवी की इबारत का। मेरी बात सुनो बड़े भाई, तुम बरेली हो तो मैं तुमको ये साबित करूंगा कि तुम अहमद रजा खान साहब की बात नहीं मानते हो। चलो साबित करना, पहले ये बताओ कि इस्माइल देहलवी की जो इबारत का तुम दिफा कर रहे हो, वो जो नमाज में नबी के ख्याल को अपनी बीवी की ख्याल से और बैल और गधे के ख्याल से बदतर बता रहा है, उसका दिफा करो। अगर मैं उसका दिफा करो कि तुम अहमद रजा खान साहब की बात नहीं मानते हो तो तुम बरेली से तुम कर लोगे ना। ये जानता हूं मैं कि तुम भागने के रास्ते तलाश कर रहे हो। ये फिर भागने की बात कर रहे हो तुम। हाँ। बरेली नहीं कर पा रहे हो। मैं साबित कर चुका। अरे मैं इससे बड़ी दलील और क्या दूं कि मैं देवबंदियों के चारों अकाबिर जो है उन्हें सड़ा हुआ काफिर मानता हूँ। ऐसा काफिर मानता हूँ कि उनकी बदबू से नाक के बाल तक जलते हैं लोगों के। मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो कि अहमद रजा खान साहब को तुम मानते हो। हाँ बिल्कुल मानता हूँ। खान साहब को मानते हो तो अजान 7 मरतबा क्यों नहीं देते हो? लो मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें मैं कैसे मानता हूँ। मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना, बोलना मत, बिल्कुल मत बोलना, बीच में मत बोलना। मैं बरेलवी साबित कर रहा हूँ अपने आपको, मैं बरेलवी साबित कर रहा हूँ। अरे मैं बरेलवी साबित कर रहा हूँ। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मैं साबित कर रहा हूँ। मुंह बंद करो, मैं साबित कर रहा हूँ। अरे मैं साबित कर रहा हूँ, मुंह तो बंद करो। अरे मुंह तो बंद करो, मैं साबित कर रहा हूँ। 7 मरतबा अजान दो। अरे मैं साबित कर तो रहा हूँ, सुन तो लो। मुंह तो बंद करो, मेरे भैया तुम ये मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। अफरोज मुंह बंद करो। ये इसमें मेरे हाथ में किताब है सिराते मुस्तकीम, इसमें लिखा हुआ है जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है और शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत महाबी हों। अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है, क्योंकि शेख का ख्याल तो ताजीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है और बैल और गधे के ख्याल को ना तो इस कदर चपीदगी होती है और ना ताजीम, बल्कि हकीर और जलील होता है। और गैर की ये ताजीम और बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज हो वो शिरकी की तरफ खींच कर ले जाती है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम देवबंदी और वहाबी अहले हदीस एक नहीं हो तो तुम इसका दिफा क्यों कर रहे हो इस्माइल देहलवी का? वो भी अपना पेशवा मानते ही से, तुम भी अपना पेशवा मान रहे हो, दिफा कर रहे हो। इसका दिफा करके दिखाओ, तुम गुरु में कर रहे हो, दिफा करो इसका दिफा। इसका दिफा करो, पहले इसका दिफा करो। तुम्हारा मेरा मौजू ये था, मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं साबित करूंगा कि देवबंदी और अहले हदीस एक है।
उसे अब इसे तुम साबित करो कि तुम एक नहीं हो। बात सुनो भाई, बात तो मैं तुम्हें दोनों को काफिर मानता हूँ, दोनों काफिर हो। तुम अहमद रजा खान साहब अब तुम ये साबित करके दिखाओ कि देवबंदी और अहले हदीस एक नहीं है। ये साबित करो, ये साबित करो। सुनो भाई, बात तो सुनो। मेरा मौजूद जो है डॉक्टर अफरोज आलम देवबंदी, तुम मुजरा मत करो, मुजरा मत करो, तुम 7 मरतबा तुम मुजरा मत करो। नहीं मानते, तुम इस इबारत का दिफा करके दिखलाओ जिसका तुम दिफा ग्रुप के अंदर कर रहे हो। इस्माइल कतील को क्या मानते हो तुम? इस्माइल कतील को क्या मानते हो? रजा खान साहब को कहते हो कि मुजद्दिद मानते हैं, तुम उनकी बातें नहीं मान रहे हो। तुम झूठ बोलते रहो, तुम इसका दिफा करो। अल्लाह की इस्माइल कतील को क्या मानना हो तुम? रजा खान साहब ने कहा है कि 7 ये मरतबा कब्र पर ये तुम जो ये जो बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर बता रहा है नमाज में, इसका दिफा करो। मेरी बात सुनो। इस्माइल कतील कौन है तुम्हारे लिए? क्या मानते हो इस्माइल कतील को? अहले हदीस भी अपने अब्बा मानते ही है और तुम भी अपना अब्बा मान के इसका दिफा कर रहे हो। तुम अहमद रजा खान साहब की अरे इसका नदीम भाई देख लिया, ये है इनकी औकात ही है। अरे मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा मैं। तुम मुझे ये बात बताओ कि ये जिना के वसवसे से जो नमाज में ख्याल अपनी बीवी के मुजामत का ख्याल बेहतर बता रहा है इस्माइल देहलवी। ओ भाई हाँ टाइम तय कर लो। हाँ टाइम तय कर लो, चलो टाइम तय करो, टाइम तय करो। अरे तुम्हारा मेरा मौजूद ये था कि मैं देवबंदी और वहाबी एक साबित करूंगा अहले हदीस। आप कह रहे हो कि अहमद रजा खान साहब ये इसकी दोनों आग लग गई, ये मुंह नहीं करेंगे अब, ये आग लग रही, बवसीर है मुंह में। हाँ मुंह बवसीर है। तो सुनो, खामोश है अफरोज। अरे यार बात तो सुनो, कम से कम अफरोज खामोश। अरे यार बात तो सुनो मेरी। कम से कम 7 मरतबा अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 7 मरतबा अजान दो, तुम लोग कहते हो 1 मरतबा। चुप। ये अहमद रजा खान जो मुजद्दिद है उनकी बात नहीं मानते हो तुम लोग। इसके क्या पेट्रोल लग गया है क्या पीछे? हाँ लग गया। मेरी बात सुनो, लग गया। अहमद रजा खान साहब की बात नहीं मानते हो। अरे तुमसे मैंने ये कहा था पीछे जो तुम्हारी मेरी बात हुई थी कि देवबंदी और वहाबी एक है, अहले हदीस है, तुम कह रहे थे एक नहीं है। इसे साबित करो कि तुम एक नहीं हो, इसे साबित करो। अरे मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ यार, तुम्हें भी और अहले हदीसों को देवबंदियों को भी, इसे साबित तो करो। नहीं मानते हो तुम लोग। इसे सिरात मुस्तकीम की इबारत को जो तुम बेगुबार साबित करना चाह रहे हो ग्रुप के अंदर, साबित करके दिखाओ, इसे साबित करो। अरे इसे साबित करो जो तुम अपनी बीवियों की मुजामत का ख्याल अपनी नमाजों में रख के पढ़ते हो। नमाज तुम्हारी नमाज कैसे हो जाती है, इसे साबित करो। अफरोज भाग गया, अफरोज भाग गया। जो इसकी दोपहर मांग लग गई, कहां से कहां पहुंच रही है, लगाओ फिर से दोबारा। डॉक्टर अफरोज तुम्हारे पेट्रोल लग गया, तुम सुन नहीं रहे हो। तुम इसकी सिरात मुस्तकीम की इबारत का दिफा क्यों नहीं कर रहे? तुम ये कहते थे कि हम देवबंदी वहाबी एक नहीं है। देखो अहमद रजा खाना के नाम से तुम लोग कितना लोगों को धोखा देते हो। वो करे तुम ये बात बताओ, तुम कब तक कौम को गुमराह करोगे? तुमने ये कहा था कि अहले हदीसों को मैं मुसलमान नहीं मानता, ये बताओ अब तुम ये साबित करो कि तुम अहले हदीसों को मुसलमान नहीं मानते, तो तुम इस्माइल कतील का दिफा क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं देते? अरे यार तुम जाहिल हो, कौन हो, बेवकूफ हो। इस्माइल कतील को क्या मानते हो तुम? अभी 7 मरतबा अज़ान नहीं देते हो, बेवकूफ। पेट्रोल लग गया देवबंदी के, देवबंदी पेट्रोल लग गया, पेट्रोल लग गया। इस्माइल कतील को क्या मानते हो तुम? अपना अब्बा मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारा अब्बा है कि नहीं है ये इस्माइल कतील? इस्माइल कतील अब्बा है तुम्हारा, नहीं है? अहले हदीसों का भी अब्बा है ये। अरे अहले हदीसों का भी अब्बा है ये। अब इसकी जो इबारत है ये डॉक्टर पेट्रोल लग गया, पेट्रोल लग गया, डॉक्टर पेट्रोल लग गया। अब इसका दिफा तो करो, ये इबारत जो सिरात मुस्तकीम की, इसका दिफा करके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। क्यों अफरोज आलम भाग गए? फिर भाग गए।